हेलो, वेलकम इन 3D मीडिया। एक नया सेक्शन आया है 194Q ऑन TDS जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। तो आइए जानते हैं एजुकेटिंग के मेंबर और FCA विशाल पोदार से कि क्या है ये और इससे क्या चेंजेस आएंगे बिजनेस परचेजिंग एंड सेलिंग में। Now I am giving to the Vishal Podarji and thanking for giving the time on the very important topic. In the today, the topic which is being allotted is on the TDS, which is going to be implemented on 1st July 2021. So sir, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एंड स्वागत करूंगा आपका एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म पर for Thank you, accepting Arun our sir. invitation, and it's over to Thank you, you, sir. Arun sir. Sir, just help me with the technicalities. My audio video is Sure. fine. Perfect. And sir, can you see my screen? Yeah. Okay. Now let me just start my okay. Is now my PPT visible, sir? PPT visible. Okay. Fine. So it's there. Sir, but I'm not able to see the video. So is it fine? You can't see, sir. You can't see. You can see Okay, only fine. during the presentation. You can see only the screen, and Okay. after completion of the webinar, we will have the question answer from the participant. So means once I close my this screen sharing, then only I'll be able to see the video. Correct, sir? Yeah. Okay, Correct. fine. But I'm visible, right? Yeah. You are visible, and Okay, your sir. PPT is also visible. Perfect. So you let me know if means somebody will be there now for technical help. So by chance, if something is not going proper, For some time, yes. I would be Yeah. there, or Pooja ma'am is going to join in some time. fine. Okay. So good evening, dear friends. Thank you for joining us on this platform of educating for this session. And the session is on the newly introduced session by the Finance Act, which is notified to be implemented from 1st of July. And the best part of this section is, जैसे कि बाकी सारे sections में होता है, this is also come up with many issues and confusions. So our today's deliberation is on the newly introduced section 194Q of the Income Tax Act, जो TDS on purchase of goods से deal करता है. So let us go ahead. Let me first discuss with you the bare provisions of this section, और उसके बाद हम इससे related जो issues है उसका analysis करेंगे. So this section is applicable whenever a person buyer is going to pay any sum to a resident. So this important word is to be highlighted. I have already highlighted in my screen is the resident, who shall now be herein referred to as a seller. And this buyer shall be paying a sum against purchase of goods जिसका वैल्यू 50 लाख को एक्सीड होने वाला है किसी भी प्रीवियस ईयर में. इफ ऑल दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, कि अगर मैं परचेज कर रहा हूं, सिंपल वर्ड्स में, एज अ बायर आई एम परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अ सेलर जिसका वैल्यू एक साल में 50 लाख के ऊपर जाता है, देन जैसे बाकी टीडीएस प्रोविजंस में होता है, या तो क्रेडिट करते वक्त या तो पेमेंट करते वक्त, जब भी मैं सेलर का अकाउंट या तो अपने बुक्स में क्रिएट करूंगा, यानी मैं उसका जो परचेज है वो ड्यू करूंगा, परचेज रिकॉर्ड करूंगा, या मैं उस परचेज के अगेंस्ट उसको पेमेंट करूंगा, दोनों में से जो भी पहले होगा, देन एज अ बायर I am required to deduct TDS at the rate of 0.1% of the amount which is exceeding 50 lakhs. So this is also important. मुझे उसी अमाउंट का TDS डिडक्ट करना है जो 50 लाख के ऊपर जाता है. So 50 lakhs is the threshold limit for applicability of this TDS. अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है जिसमें बायर कौन होगा उसे एक्सप्लेन किया है, उसे डिफाइन किया है. सो बायर हैज बीन डिफाइंड टू मीन अ पर्सन जिसका खुद का सेल्स या ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस हैज एक्सीडेड 10 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है, इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है कि मुझे जिसे टीडीएस डिडक्ट करना है, मैं कौन हूं, मैं बायर हूं इस ट्रांजैक्शन में, लेट अस से आप सेलर हो, तो मुझे टीडीएस कब डिडक्ट करना है. पिछले स्लाइड में था, पहला जो कंडीशन था कि मैं आपसे जो परचेस कर रहा हूं वो एक साल में 50 लाख के ऊपर उसका टोटल वैल्यू जाता है, जितने भी मैं परचेजेस करता हूं उसका पूरे साल में वैल्यू 50 लाख के ऊपर जाता है. और दूसरा, मेरा खुद का पिछले साल का टर्नओवर, अगर हम करंट ईयर की बात करें जिसमें टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी इफ आई हैव टू डिसाइड, देन आई हैव टू सी माय टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. अगर मेरा पिछले फाइनेंशियल ईयर का मेरा खुद का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड हुआ है, देन ओनली आई एम लायबल टू डिडक्ट योर टीडीएस. सो हम इस पूरे
वेबिनार में मैं बायर का रोल प्ले करूंगा और आप सेलर रहेंगे. दिस विल मेक आवर इंटरेक्शन ईजियर एंड द प्रोविजन समझाना भी बहुत ईजी हो जाएगा. सो एज अ बायर मैं अगर साल भर में आपसे 50 लाख से ज्यादा के वैल्यू के गुड्स अगर परचेज करता हूं तो मुझे 50 लाख क्रॉस होने के बाद जितना भी एक्सेस अमाउंट का मैं आपसे ट्रांजैक्शन कर रहा हूं उसका मुझे आपका टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर दिस सेक्शन 194Q एट द रेट ऑफ 0.1%. और ये मैं तभी करूंगा अगर मेरा पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड हुआ है. अब इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस क्या है. अगर मुझे टीडीएस एप्लीकेबल है तो मुझे ये टीडीएस कब कट करना है. तो लॉ ने कहा है मैं इसे कट करूंगा जब भी मैं आपका अकाउंट क्रेडिट करूंगा, यानी जब भी मैं आपसे परचेज करूंगा तो मैं परचेज का एंट्री पास करूंगा बुक्स में, या जब भी मैं आपको इसका पेमेंट करूंगा, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर. सो इट विल बी द डेट ऑफ क्रेडिट और द डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सेलर विच एवर इज अर्लियर. अब इसमें उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी एक्सप्लेनेशन में. काफी बार लोग टीडीएस अवॉइड करने के लिए आपके अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह पे वो एक सस्पेंस अकाउंट में अमाउंट को पार्क कर देते हैं. लॉ इज क्लियर कि अगर मैंने आपका ट्रांजैक्शन सस्पेंस में भी पार्क किया है स्टिल टीडीएस विल बी एप्लीकेबल. सेकंड, रेट क्या होगा. जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओरिजिनल सेक्शन में, द रेट इज 0.1% ऑफ द परचेज वैल्यू एक्सीडिंग 50 lakhs. हाउएवर आपने यानी सेलर ने मुझे अपना पैन या आधार नंबर प्रोवाइड करना है. अगर आप वो मुझे प्रोवाइड नहीं करते हैं तो यही 0.1% की जगह टीडीएस मैं आपका 5% से डिडक्ट करूंगा. इसमें एक और प्रोविजन जो इसी साल के बजट ने ऐड किया है जिससे अब थोड़ा सा मुश्किल बढ़ने वाली है कंप्लायंस की, प्रोसीजर की, वो ये कि अब मैं आपसे कहूंगा, सेलर से कहूंगा कि मुझे आपके पिछले 2 साल के रिटर्न्स के भी कॉपी चाहिए. आपको मुझे अपने पिछले 2 साल के रिटर्न्स की भी कॉपी प्रोवाइड करनी है क्योंकि मुझे यह चेक करना है कि क्या आपने अपने पिछले 2 साल के रिटर्न ड्यू डेट जो कि सेक्शन 139(1) में बताई गई है उसके अंदर फाइल किए हैं क्या. सो मैं मुझे यह चेक करना है कि क्या आपने ड्यू डेट के अंदर रिटर्न्स फाइल किए हैं और क्या आपका पिछले दोनों साल का, जिस साल के मैं रिटर्न चेक कर रहा हूं, क्या आपका पिछले दोनों साल का जो टीडीएस या टीसीएस हुआ है वो 50,000 को एक्सीड हुआ है. अब ये दोनों कंडीशंस चेक करने के लिए मुझे आपसे आपके रिटर्न के डिटेल्स लेने पड़ेंगे और आपसे 26AS के डिटेल्स लेने पड़ेंगे जिसमें आपका टीडीएस और टीसीएस रिफ्लेक्ट होता है. तो कहीं पे अब इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से मुझे आपके पर्सनल डिटेल्स अब आपको शेयर करने पड़ेंगे. अगर आप ऐसा नहीं करते या अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किए हैं तो फिर वापस मैं आपका जो टीडीएस डिडक्ट करूंगा वो 0.1% की जगह सीधे 5% से करूंगा. सो अब आप अगर चाहेंगे कि आपका हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट ना हो तो आपको आपका ये बहुत ही सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके इनकम का, आपके टीडीएस टीसीएस का मुझसे शेयर करना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी अ न्यू मैटर ऑफ कंसर्न. नेक्स्ट, मुझे किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है. जैसा ओरिजिनल प्रोविजन में था, हर साल हर सेलर का 50 लाख का लिमिट मुझे चेक करना है. सो इफ आई एम बाइंग फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स जिसमें से आप एक हैं तो मैं सबका क्लब करके 50 लाख नहीं चेक करूंगा. मैं इंडिविजुअली हर सेलर के साथ जो मेरा ट्रांजैक्शन होता है वो 50 लाख एक्सीड होता है या नहीं, और वो मैं हर फाइनेंशियल ईयर में चेक करूंगा. सो मे बी इस फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 लाख एक्सीड होता है तो मैं इस फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस करूंगा. अगले फाइनेंशियल में अगर एक्सीड नहीं हुआ तो मे बी मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा. नेक्स्ट, अब कंप्लायंस से रिलेटेड ये जो भी मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा ये मुझे डिपॉजिट कब तक करना है. तो जनरल रूल इज हर महीने जो मैं टीडीएस आपका डिडक्ट करूंगा वो अगले महीने के 7th तक मुझे डिपॉजिट करना है. और इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है मार्च मंथ का टीडीएस जो मुझे 30th अप्रैल तक डिपॉजिट करना पड़ता है. इसके रिटर्न्स मुझे फाइल करने हैं टीडीएस के. जो भी मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा उसका रिटर्न क्वार्टरली फाइल होगा फॉर्म 26Q में जिसके ड्यू डेट्स आपके सामने है. सो क्वार्टर वाइज ड्यू डेट्स दिए गए हैं जब मुझे आपका ये टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है और मेरे ये रिटर्न फाइल करने के बाद आपके 26AS में वो टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा जो मैंने आपका डिडक्ट किया है. नेक्स्ट, अगर मैं ये ऊपर बताया हुआ टीडीएस डिडक्ट करने को या जमा करने को कंप्लाई नहीं करता हूं, सो इफ देयर इज अ फेलियर ऑन माय पार्ट टू इधर डिडक्ट और डिपॉजिट द टीडीएस, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. सबसे पहला, आई शैल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होंगे. और जितना भी मैं टीडीएस डिडक्शन करता हूं उसका मुझे 1% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना है. और अगर टीडीएस डिडक्ट करने के बाद मैं डिपॉजिट जितना लेट करता हूं उसका मुझे 1.5% पर मंथ और पार्ट का इंटरेस्ट पे करना है. अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए पेनल्टी है या पनिशमेंट है कि अगर मैं इस साल आपका टीडीएस जो डिडक्ट करना चाहिए था वो नहीं करता हूं या डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट नहीं करता हूं, देन
जब मैं मेरा बिजनेस इनकम कैलकुलेट करूंगा तो जो मैंने आपसे परचेजेस किए हैं, जो मेरे लिए बिजनेस हेड में मेरे एक्सपेंसेस बोल के माइनस होने चाहिए, उसमें से 30% ऑफ द परचेज वैल्यू ये डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब समझिए, मैंने आपसे 1 करोड़ का परचेज किया है, तो मुझे 1 करोड़ में से सिर्फ 70 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा, बाकी 30 लाख का मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैंने उस 1 करोड़ का जिसका मुझे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, मैंने या तो डिडक्ट नहीं किया या डिपॉजिट नहीं किया। अब ये जो भी प्रोविजंस है, हम इसका थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और इससे रिलेटेड जो इश्यूज है जो आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल सिमिलर एक प्रोविजन आया था, वो था टीसीएस अंडर सेक्शन 206C ब्रैकेट 1H, और वो सेम कॉपी पेस्ट प्रोविजन अभी टीडीएस के रूप में आया है। पिछले साल जब वो टीसीएस आया था तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्लैरिफिकेटरी प्रोविजंस क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज भी दिया था और एक सर्कुलर भी दिया था। अभी तक फिलहाल आज के डेट तक ऐसा कोई भी प्रेस रिलीज सर्कुलर 194Q के लिए अब तक गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है। सो आज जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें काफी सारे ओपन इश्यूज हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो इश्यूज डिस्कस करूंगा। यस, वी आर अवेटिंग अ सर्कुलर, अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड ऑन दोज इश्यूज। वो आने के बाद शायद ये मैटर काफी सिंप्लीफाई और क्लियर हो जाए। अब ये जो इश्यूज है ये हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायर से रिलेटेड जो इश्यूज है वो क्या है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं आपके ही अलग अलग एंटिटीज से, सो लेट अस से आप एक कंपनी है और मैं आपके अलग अलग एंटिटीज से गुड्स परचेज कर रहा हूं जिसका जीएसटी में आपने अलग अलग जीएसटी नंबर लिया है। सो द क्वेश्चन इज, मुझे 50 लाख कैसे अप्लाई करना है? आंसर इज, मुझे 50 लाख पैन बेसिस पे अप्लाई करना है, ना कि आपके जितने जीएसटीआईएन होंगे। सो आजकल जीएसटी में एक कंपनी के मल्टीपल जीएसटीआईएन होते हैं। अगर आपके अलग अलग जगहों पे यूनिट्स है, मैं पर यूनिट 50 लाख नहीं चेक करूंगा, मैं पर कंपनी पर पैन 50 लाख चेक करूंगा। नेक्स्ट, जो बायर का डेफिनेशन है उसमें एक्सप्लेनेशन में वर्ड यूज किया है, बायर मींस एनी पर्सन। सो मैं एज अ बायर इंडिविजुअल हो सकता हूं, फर्म हो सकता हूं, कंपनी हो सकता हूं। मतलब टीडीएस डिडक्शन इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ कि बायर यानी मैं कौन सा इंडिविजुअल हूं या फर्म हूं या कंपनी हूं। सो फॉर ऑल पर्सन टीडीएस इज एप्लीकेबल। अब आता है एक इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू। काफी बार मैं जो परचेजेस कर रहा हूं वो मैं किसी फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट से कर रहा हूं। लेट अस से आप एक फार्मर हो और मैं एक टोमेटो केचप कंपनी हूं जहां पे मुझे मेरा प्रोडक्ट यानी टोमेटो केचप बनाने के लिए आपसे रॉ मटेरियल परचेज करना इन द फॉर्म ऑफ टोमेटोस। अब क्योंकि आप एक फार्मर हो, आपका ये जो सेल है ये एग्रीकल्चरल गुड्स का है जो इनकम टैक्स में आपके लिए एग्जम्प्ट इनकम है। अब सवाल आता है, अगर बाकी के सारे कंडीशंस कंप्लाई हो चुके हैं, सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो क्या मैं आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा? अब ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके लिए ये जो भी इनकम है जो आपको मुझसे होने वाला है, ये आपके लिए इनकम टैक्स लॉ में एग्जम्प्ट इनकम है, क्योंकि आप एक एग्रीकल्चरिस्ट है और आपका इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। मगर अब तक इसके लिए टीडीएस 194Q में कोई एक्सेप्शन एक्सक्लूजन नहीं दिया है। सो फिलहाल के लिए आई विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस इवन इफ यू आर अर्निंग एन एग्जम्प्ट इनकम। सो ये एक चैलेंज है जिसका एड्रेस होना चाहिए। नेक्स्ट, जीएसटी में अगर मैं ही किसी अपने दूसरे ब्रांच से कुछ गुड्स खरीदता हूं तो वहां पे मुझे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है अगर उस ब्रांच के पास एक अलग जीएसटीआईएन है। अब सवाल आता है कि अगर ऐसे ही मैंने मेरे किसी दूसरे ब्रांच से परचेज किया जिसका जीएसटीआईएन अलग है मगर वो मेरा ही ब्रांच है, तो क्या मुझे टीडीएस एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। रीजन, टीडीएस के लिए जो बायर का डेफिनेशन है वहां पे वर्ड यूज किया है पर्सन। पर्सन मींस अ सेपरेट लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स, नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द आईज ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी की नजरों में मेरा ब्रांच एक डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकता है, उससे परचेज किए हुए गुड्स का जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होगा मगर उस पे इनकम टैक्स और टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, क्या एज अ इंपोर्टर मुझे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए? आंसर इज नो। रीजन इज, टीडीएस में एक बहुत सिंपल प्रोविजन है, वो ये कि जब आप प्रोविजन पढ़ते हो तो वहां पे स्टार्टिंग लाइन में ही लिखा है कि मुझे टीडीएस किसका डिडक्ट करना है, जहां पे मैं किसी रेसिडेंट को पेमेंट करने वाला हूं। अब अगर एज इंपोर्टर मैं कोई गुड्स परचेज कर रहा हूं, ऑब्वियसली द पर्सन जिससे मैं परचेज कर रहा हूं वो इंडिया के बाहर है, सो ही विल नॉट बी अ रेसिडेंट। सो मुझे 194Q में तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। हाँ, जो बाकी के सेक्शंस है, सेक्शन 195 या अभी जो नया इक्वलाइजेशन लेवी आया है वो एप्लीकेबल हुआ तो वहां का मुझे पेमेंट करना पड़ सकता है। मगर 194Q में एज एन इंपोर्टर मुझे
आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि समझिए, लेट अस से अब ट्रांजैक्शन उल्टा है, कोई पर्सन एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स का। सो नाउ लेट अस से यू आर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और आपका बायर इंडिया के बाहर बैठा है, तो क्या उसे जीएसटी क्या उसे इनकम टैक्स का टीडीएस लागू है? आंसर इज यस। आंसर इज यस, क्योंकि प्रोविजन ने उसको कोई एक्सक्लूजन नहीं दिया है। मगर अगर आप प्रैक्टिकली समझोगे तो प्रैक्टिकली इसका आंसर नो ही आना चाहिए। इसलिए मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि गवर्नमेंट ने जल्द ही जो, जैसा मैंने कहा, सर्कुलर या प्रेस रिलीज गवर्नमेंट जो लाना चाहिए वो लाके ये मैटर क्लैरिफाई करना चाहिए। अदरवाइज प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और आपका बायर जो कि इंडिया के बाहर बैठा है, अगर उसको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, जो आज की तारीख में लिटरली अगर हम जाएंगे तो अप्लाई हो रहा है, बट प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि बाहर बैठा हुआ आदमी के पास न इनका इंडिया का पैन है न इंडिया का टैन है, तो वो कैसे आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकता है? सो टेक्निकली इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल। सो वी आर वेटिंग एंड आई एम श्योर इसके लिए गवर्नमेंट जो भी प्रेस रिलीज सर्कुलर लाएगा उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इशू रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी इज, अब इस सेक्शन में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वहां पे बायर के डेफिनेशन में रिक्वायरमेंट क्या है कि बायर का टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ के ऊपर होगा तो ही उसे टीडीएस डिडक्ट करना है। अब मेरे एग्जांपल में आई एम द बायर, मैं आपसे गुड्स परचेस कर रहा हूं। अब मेरा पिछले साल का टर्नओवर जो 10 करोड़ चेक करना है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज है। पहला, ये 10 करोड़ मुझे हर ईयर चेक करना है। मतलब अगर मैं इस साल टीडीएस को लायबल हूं क्योंकि मेरा पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर था, तो इस साल मुझे टीडीएस एप्लीकेबल है, पर इसका यह मतलब नहीं होगा कि इसके अगले हर साल मुझे टीडीएस एप्लीकेबल ही होगा। मुझे हर साल मेरे पिछले साल का टर्नओवर चेक करना है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू डिटरमाइन कि क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी करंट प्रीवियस ईयर की बात करूं जो अभी 21-22 चल रहा है, इसमें मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है नहीं, इसके लिए मुझे मेरा पिछले साल का यानी 2021 का टर्नओवर चेक करना पड़ेगा। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट इशू, जब मैं मेरा टर्नओवर चेक करता हूं तो टर्नओवर इंक्लूडिंग जीएसटी होगा या एक्सक्लूडिंग जीएसटी होगा। काफी बारी बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि लेट से मेरा टर्नओवर, एक्चुअल टर्नओवर इज 9 करोड़ और मुझे जीएसटी एप्लीकेबल है 18%, तो वो इंक्लूड करके अगर मैं मेरा सेल चेक करता हूं तो वो 10 करोड़ को एक्सीड होता है। यस सर। सर थोड़ी वॉइस में डिस्टरबेंस आ रही है, मतलब फ्रीक्वेंटली आ रही है, रिसीविंग द मैसेजेस। मतलब मेरा वॉइस क्लियर नहीं है या वैसे वॉइस अच्छा, क्लियर है, बिकॉज मे बी कि थोड़ा मतलब या तो नियर आ जाता है या थोड़ा मतलब मूवमेंट होता है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, प्रोबेबली अच्छा अच्छा, दैट मे बी द वन ऑफ द रीजन। नाउ इट्स परफेक्ट, नाउ इट्स परफेक्ट। परफेक्ट सर, ठीक है सर। या Sorry, स्टिल thank यू you. लेट मी नो, क्योंकि मेरे सामने क्या मैसेजेस भी कहीं पे दिख डिस्प्ले नहीं नहीं रहे। होंगे, डिस्प्ले नहीं हाँ होंगे, यस, ओके ओके फाइन सर। सो यस you. मेंबर्स, आई वाज डिस्कसिंग दिस पॉइंट कि मेरा टर्नओवर जो पिछले साल का, जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूं 9 करोड़ से समझिए, और मुझे जीएसटी एप्लीकेबल है 18%, तो अब अगर मैं 9 करोड़ अगर बिफोर जीएसटी देखूं तो मेरा टर्नओवर 9 करोड़ आता है, और अगर मैं जीएसटी इंक्लूड कर दूं तो मेरा टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड हो जाता है। सो द क्वेश्चन इज, कौन सा टर्नओवर देखना है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग जीएसटी? अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि since we are discussing income tax law, so we have to get the definition of turnover as per the provisions of income tax law। और यहाँ पे सेक्शन 145A जो कि स्पेसिफिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड है, वो क्लियरली मेंशन करता है कि एज पर द रिलेवेंट आईसीडीएस जो कि इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स है, वहां पे अब ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब भी आप आपका टर्नओवर कंप्यूट करते हैं, आपको जीएसटी का अमाउंट उसमें इंक्लूड करके वो टर्नओवर को कंसिडर करना है। सो आई विल बी कंसिडरिंग माय टर्नओवर फॉर फाइंडिंग आउट दिस 10 करोड़ लिमिट इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो टीडीएस एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स पे, यानी अगर मैं कोई परचेज ऑफ सर्विस करता हूं, मैं आपसे कोई सर्विस का ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो मुझे उसके ऊपर आपका टीडीएस कट नहीं करना है। मगर ये जो मुझे मेरे बिजनेस का टर्नओवर चेक करना है पिछले साल का 10 करोड़ एक्सीड हुआ, यानी वो डिटरमाइन करते वक्त मैंने मेरे टर्नओवर में सिर्फ गुड्स का टर्नओवर लेना है या सर्विसेज का भी लेना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है, वापस अगर हम ओरिजिनल सेक्शन के लैंग्वेज पे जाएंगे तो ओरिजिनल सेक्शन का लैंग्वेज बोलता है टर्नओवर ऑफ बिजनेस।
तो जो मुझे मेरे पिछले साल का 10 करोड़ का लिमिट चेक करना है कि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आई हैव टू कंसिडर बोथ माय टर्नओवर ऑफ गुड्स एज वेल एज टर्नओवर ऑफ सर्विसेज। हाँ, मुझे जो आपका टीडीएस डिडक्ट करना है वो मैं आपके सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स के टर्नओवर का टीडीएस डिडक्ट करूंगा, वो भी 50 लाख के ऊपर क्रॉस होने के बाद। मगर जो मुझे मेरा टर्नओवर चेक करना है टीडीएस एप्लीकेबिलिटी के लिए पिछले साल का, दैट will be decided on the basis of my turnover of goods and services combined. Next, अब और इश्यूज क्या है? अब ये इश्यू आता है 50 लाख वाले पॉइंट से रिलेटेड। सो अब तक मैं 10 करोड़ वाले पॉइंट से रिलेटेड बात कर रहा था, जो कि मेरा टर्नओवर चेक करना था, बायर का टर्नओवर चेक करना था। अब जो मैं आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, जिसका मुझे टीडीएस कट करना है, यानी मैं जो आपसे गुड्स परचेज कर रहा हूं 50 लाख के ऊपर के, उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं और उसके क्या क्लैरिफिकेशंस हैं। अब यहां पे पहला क्लैरिफिकेशन है, मैं जब आपके साथ टर्नओवर की बात कर रहा हूं जिसका मुझे टीडीएस कट करना है, जिसका मुझे 50 लाख का लिमिट चेक करना है, दिस इज टर्नओवर ओनली फॉर गुड्स। अगर मैं आपके पास से गुड्स के अलावा कोई सर्विसेज भी परचेज कर रहा हूं, यानी मैं आपसे कोई सर्विसेज अवेल कर रहा हूं, लेट अस से यू आर सेलिंग मी गुड्स आल्सो एंड यू आर आल्सो प्रोवाइडिंग योर प्रीमाइसेस ऑन रेंट, सो आई एम मेकिंग पेमेंट टू यू फॉर टू थिंग्स, वन इज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स जो आपने मुझे किए हैं, एंड ऑल्सो जो आपने मुझे रेंटिंग सर्विस प्रोवाइड की है, मैं उसका भी आपको पेमेंट कर रहा हूं। मैं 50 लाख का लिमिट चेक करते वक्त सिर्फ आपके टर्नओवर ऑफ गुड्स का वैल्यू कंसिडर करूंगा, और वो अगर 50 लाख के ऊपर जाता है तो उसी के ऊपर का मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा। आपके साथ जो मेरा सर्विस का ट्रांजैक्शन हुआ है, जिसमें आप मुझे रेंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वो ना मैं 50 लाख के लिमिट में कंसिडर करूंगा, ना ही मैं उसका टीडीएस डिडक्ट करूंगा अंडर 194Q। यस, उसके लिए जो दूसरे टीडीएस के सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, वहां पे मैं उसका टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूं इफ दे आर सैटिस्फाइड। नेक्स्ट, अब आता है अगला क्वेश्चन। यहां पे मुझे जो आपका टीडीएस डिडक्ट करना है, वापस सेम क्वेश्चन। जब मैंने मेरा 10 करोड़ का पिछले साल का लिमिट चेक किया, तो वहां पे पिछले स्लाइड में क्लैरिफिकेशन था, मेरा जो खुद का टर्नओवर चेक करना था 10 करोड़ का लिमिट डिसाइड करने के लिए, वहां पे मैं जीएसटी इंक्लूड करके 10 करोड़ डिसाइड कर रहा था। अब हम आते हैं आपके और मेरे बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, जहां पे मैंने आपसे गुड्स परचेज किए हैं, जिसका मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है, और यहां पे जो 50 लाख का लिमिट है, क्या ये लिमिट कैलकुलेट करते वक्त, क्या ये लिमिट चेक करते वक्त आई हैव टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब इससे रिलेटेड विल हैव टू गो थ्रू सम अर्लियर सर्कुलर्स इशूड बाय द सीबीडीटी। अब हमें पुराने सर्कुलर्स क्यों चेक करने पड़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक यहां पे मेरे पास कोई सर्कुलर नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये सर्कुलर एक्सपेक्टेड है, मे बी 1 जुलाई को इंप्लीमेंट होने वाला है, तो शायद 29 या 30 जून तक वी आर एक्सपेक्टिंग अ सर्कुलर। फिलहाल नहीं है, तो हम अगर पुराने सर्कुलर्स को कंपेयर करें, तो मैंने 2 सर्कुलर्स यहां पे कंसिडर किए हैं। एक, जहां पे 194J में मैं आपसे जो अलग अलग प्रोफेशनल सर्विसेज या रॉयल्टी सर्विसेज जो भी मैं अवेल कर रहा हूं, उसका जो टीडीएस डिडक्ट करना था, उसके लिए एक पुराना सर्कुलर बोलता है कि वहां पे मैंने जीएसटी इंक्लूड नहीं करना था। मगर इंपॉर्टेंट यह है कि यह सर्कुलर था इन रिलेशन टू पेमेंट फॉर सर्विस। तो क्या ये सर्कुलर हमने यहां पे अप्लाई करना चाहिए क्या? आंसर इज नो। देन वी कम टू द नेक्स्ट सर्कुलर, जो पिछले साल ही सिमिलर, जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ आज के वेबिनार में कहा, जैसा अभी ये टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स आया है, सिमिलर ऐसा ही पिछले साल टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स आया था, और वो स्क्वायरली इसी सेक्शन का रेप्लिका था। अब उस टीसीएस के लिए जो सर्कुलर उन्होंने लास्ट ईयर इशू किया था, वहां पे उन्होंने कहा था कि वो जो 50 लाख का लिमिट उस टीसीएस में एप्लीकेबल है, सेक्शन 206C वाले टीसीएस में, वहां पे जीएसटी इंक्लूड करके आपको 50 लाख चेक करना था। अब अगर मैं इस सेक्शन टीडीएस वाले सेक्शन को अगर मैं अप्लाई करने जाऊं, तो यहां का लैंग्वेज भी बोलता है सम पेड फॉर परचेस, और क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया है सम, और इसी से रिलेटेड जो सिमिलर पिछले साल का टीसीएस का प्रोविजन था, उसमें जीएसटी इंक्लूड करने को कहा गया है। तो अगर मैं इन दोनों को हार्मोनियसली इंटरप्रेट करूं, तो यहां पे भी मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहां पे भी आपको 50 लाख काउंट करते वक्त जीएसटी इंक्लूड करके काउंट करना चाहिए। सो यहां का टीडीएस 50 लाख का जो भी आप डिडक्ट करेंगे, और जो आप 50 लाख का लिमिट चेक करेंगे, दैट विल बी इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी। आई एम श्योर ये चीज सर्कुलर में भी क्लैरिफाई हो जाएगी। अब अगला सवाल आता है, काफी बार बिफोर परचेज ऑफ गुड्स आई हैव टू मेक पेमेंट ऑफ एडवांस। तो सवाल ये आता है, क्या मुझे एडवांस पेमेंट का भी जीएसटी डिडक्ट करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा
आंसर इज यस। क्यों मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एडवांस पेमेंट का भी, अज्यूमिंग अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड? रीजन इज टीडीएस डिडक्ट कब करना है? टीडीएस आपको डिडक्ट करना है ईदर ऑन पेमेंट और ऑन द एंट्री विच एवर इज अर्लियर। तो अभी भले एंट्री नहीं हुई है क्योंकि अभी तक परचेज नहीं हुआ है, मगर क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एडवांस, टीडीएस डिडक्शन विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट इशू आता है कि अभी मैंने आपसे परचेज कर लिया, जिसका मैंने टीडीएस डिडक्ट करके जमा भी कर दिया, पर उसके बाद फॉर सम रीजन आपके और मेरे बीच के इस परचेज ट्रांजैक्शन के वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ा है। अब उसके कारण क्या हो सकते हैं? देयर आर सम परचेज रिटर्न्स, या फ्यूचर में आप कोई कैश डिस्काउंट मुझे अलाउ करते हो, या क्वालिटी के लिए मैं कोई एडजस्टमेंट करता हूं बिकॉज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी डिलीवर्ड, मैं उसका कुछ एडजस्टमेंट करता हूं, या इन फ्यूचर इफ आई हैव अचीव सर्टेन टर्नओवर यू आर ऑफरिंग मी सम टर्नओवर डिस्काउंट। इन सब की वजह से इफेक्टिवली क्या होगा? मेरे बुक्स में आपके पास से जो आया हुआ परचेज वैल्यू है वो कम हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, जितने अमाउंट से आपका परचेज वैल्यू कम हो गया उसके ऊपर मैं ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट करके भर चुका हूं एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, तो उसका क्या होगा? आंसर इज उसके लिए आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यानी ये जो भी आपका टीडीएस इन सारे वैल्यूज पे डिडक्ट हुआ है वो एक तरह से एक्सेस टीडीएस डिडक्टेड करके रह जाएगा। उसका एक ही चीज होगा कि क्योंकि मैंने आपको टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, आप उसका अपने इनकम टैक्स रिटर्न में बेनिफिट ले सकते हैं, मगर हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। नाउ इसी में एक और इश्यू आता है कि समझिए मैंने आपको एडवांस पे किया, जो पॉइंट ऑलरेडी यहां पे कवर्ड था, और एडवांस पे करते वक्त मैंने उसका टीडीएस कट करके जमा कर दिया। अब इसके अगेंस्ट आप मुझे फ्यूचर में गुड सप्लाई करने वाले थे, मगर किसी कारण से समझिए फ्यूचर में जो आप मुझे गुड सप्लाई करने वाले थे वो ट्रांजैक्शन ही हमारा परचेज का कैंसिल हो गया। तो मैंने आपको एडवांस पे किया था, जिसका मैंने आज इस सेक्शन के अंडर टीडीएस कट करके जमा कर दिया है। फ्यूचर में 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप मुझे सेल करने वाले थे जो मेरे लिए परचेज होना था आपसे, किसी कारण से हमारा ये ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गया, अब मैं आपसे परचेज नहीं करने वाला हूं। अब सवाल आता है कि जो मैंने आपका टीडीएस एडवांस का कट करके जमा किया था उसका क्या होगा? क्या मैं वो रिफंड ले सकता हूं? आंसर इज नो। इनकम टैक्स में भरे हुए टीडीएस के रिफंड का कोई प्रोविजन नहीं है। वापस यहां पे एक ही चीज होगी कि आपको वो टीडीएस का आपके इनकम टैक्स रिटर्न में क्रेडिट लेके उसका अगर रिफंड या एडजस्टमेंट ही पॉसिबल है, मेरे एंड पे उसका कोई भी रिफंड पॉसिबल नहीं है। और इसमें इश्यूज क्या है? अब आता है सवाल कि जरूरी है कि मैंने आपको मॉनिटरी पेमेंट करना है तो वही 50 लाख में कंसिडर होगा। सेकंड, काफी बार हम ये करते हैं, मैं फर्स्ट पे रहता हूं, कि आपसे मैंने गुड्स परचेज किए, समझिए उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 60 लाख, और मेरा और आपका दूसरा कोई ट्रांजैक्शन था जहां पे आपको मुझे पे करना था, तो हम बुक्स में ही वो नॉक ऑफ कर देते हैं। या मैंने आपसे परचेज किया है और मैंने किसी और पर्सन को सेल किया है, और आपका और वो पर्टिकुलर पर्सन का कोई आपस में लिंक है, तो आप मुझे बोलते हो कि विशाल भाई आपको उसको पे करने की जरूरत नहीं है, आप जो मुझे पे करने वाले थे वो आप उसके अगेंस्ट नॉक ऑफ कर दो। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बुक एडजस्टमेंट, जहां पे मैं एक्चुअली आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करने वाला हूं टुवर्ड्स दिस परचेज ऑफ गुड्स। तो अब सवाल आता है क्या इधर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? सिमिलरली जहां पे आपके और मेरे बीच में बार्टर ट्रांजैक्शन हुआ है, व्हाट इज बार्टर ट्रांजैक्शन? आपने मुझे गुड्स सप्लाई किए, मैंने आपको कोई सर्विस सप्लाई की। सो लेट अस से मैं आपसे गुड्स परचेज कर रहा हूं, और आप जिस जगह में बिजनेस कर रहे हो वो मेरी ही प्रोवाइड की हुई जगह है जिस पे आपको मुझे रेंट पे करना था। अब हमारे बीच में जो 2 ट्रांजैक्शन है, हम आपस में ये ट्रांजैक्शन नॉक ऑफ कर रहे हैं। आपने मुझे गुड्स सप्लाई किए, मैं आपको उसका कोई पेमेंट नहीं कर रहा हूं, उसके बदले में मैं आपको मेरी जगह प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि रेंट पे है। अब सवाल आता है इन दोनों केसेस में, जहां पे या तो मैंने बुक एडजस्टमेंट के थ्रू आपका पेमेंट एडजस्ट किया है, या आपके और मेरे बीच में बोथ साइड ट्रांजैक्शन है जैसे कि बार्टर है, तो वहां पे मैं आपको एक्चुअली कोई पे नहीं कर रहा हूं अमाउंट, तो सवाल आता है टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या? आंसर इज यस, फॉर द सिंपल रीजन ये जो टीडीएस एप्लीकेबल है ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर पे एप्लीकेबल है। एक है पेमेंट और दूसरा है एंट्री। तो भले मैं आपको पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मगर मैं इस परचेज को बुक तो करूंगा मेरे बुक्स में। तो जैसे मैं परचेज को बुक करूंगा मेरा टीडीएस ट्रिगर हो जाएगा, भले मैं फ्यूचर में इसका आपको पेमेंट ना करूं, वो इन दोनों में से किसी तरीके से नॉक ऑफ हो जाए। सो इन दोनों केसेस में टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। और प्लस इन्होंने यहां पे क्लैरिफाई करते वक्त सेक्शन में जो लैंग्वेज यूज किया है वो बोला है पेमेंट देयर ऑफ बाय एनी मोड। तो ये जो वर्ड्स यूज किए हैं सेक्शन में एनी मोड, इस वजह से भी ये पॉइंट को और
स्ट्रेंथन होता है ये दोनों पॉइंट्स, कि ये दोनों केसेस में भले मैं आपको मॉनेटरी टर्म्स में पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मगर किसी ना किसी तरीके से वो परचेज का आपको पेमेंट मिल गया है, तो टीडीएस विल बी एप्लीकेबल। नेक्स्ट, अब आता है एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो हमें 50 लाख का लिमिट चेक करना है, परचेस और पेमेंट। अब काफी बार बिजनेस में ट्रांजैक्शन इस तरीके से होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने इस साल में आपसे परचेस किया 60 लाख का, मगर इस साल भर में मुझे जो आपको पेमेंट हुआ वो सिर्फ 45 लाख का हुआ, बाकी 15 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का। अब परचेस 60 लाख का हुआ है, पेमेंट 45 लाख का हुआ है, तो अब सवाल आता है कि जो 50 लाख का लिमिट अप्लाई करना है, क्या ये दोनों को अप्लाई करना है? मतलब मुझे 50 लाख चेक करते वक्त परचेज और पेमेंट दोनों देख के चेक करना है कि जब दोनों एक्सीड होंगे तभी टीडीएस डिडक्ट होगा, या दोनों में से कोई भी एक एक्सीड हो गया तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा? आई थिंक आपको इसका आंसर अब खुद समझ में आएगा, क्योंकि ये टीडीएस एप्लीकेबल है ऑन विच एवर इज अर्लियर पे। तो या तो मेरा परचेज हो जाए 50 लाख के ऊपर तो मैं टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर दूंगा, या मेरा पेमेंट हो जाए 50 लाख के ऊपर तो भी मैं टीडीएस डिडक्ट करना शुरू कर दूंगा। सो मेरे एग्जांपल में दोनों में से अगर किसी एक का भी वैल्यू 50 लाख एक्सीड हो जाता है, भले सिर्फ परचेज एक्सीड हुआ है, मे बी पेमेंट 50 लाख के नीचे, तो भी मैं इसका 50 लाख के आगे वाले अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट करूंगा। सो मेरे एग्जांपल में मैंने आपसे 60 लाख का परचेज कर लिया, मगर पेमेंट 45 लाख का ही किया है, तो भी क्योंकि मैंने 60 लाख का परचेज कर लिया है, तो मैं यहाँ पे 10 लाख का यानी 50 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसका टीडीएस डिडक्ट करूंगा, भले वो पेमेंट उतना 50 लाख तक नहीं पहुंचा है। सो आंसर इस दोनों में से एक भी पेमेंट या परचेज, दोनों में से एक का भी 50 लाख क्रॉस हो गया, मैं उस बेसिस पे आपका टीडीएस डिडक्ट करूंगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा ट्रांजिशन पे आते हैं, क्योंकि ये टीडीएस अभी अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, 1 जुलाई से ये अप्लाई होने वाला है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सिनारियोज आएंगे। पहला सिनारियो क्या है? परचेज 1 जुलाई के पहले हो गया था, मगर पेमेंट 1 जुलाई के बाद होने वाला है, या वाइस वर्सा, पेमेंट पहले हो गया एडवांस का और परचेज बाद में होने वाला है। इस केस में आप टीडीएस कैसे अप्लाई करेंगे? अब सबसे पहली बात यहां पे मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये जो 50 लाख का लिमिट हमें चेक करना है इस साल करेंट ईयर में, अब क्योंकि इस साल 1 जुलाई से टीडीएस अप्लाई होने वाला है, तो फर्स्टली हमें 50 लाख कब से काउंट करेंगे? हम 1 जुलाई से आगे जाके 50 लाख काउंट करेंगे, या इस साल के शुरुआत से 1 अप्रैल से जो ट्रांजैक्शंस हुए थे वो कंसिडर होंगे? आंसर इज 1 अप्रैल से जो ट्रांजैक्शन हुए थे वो कंसिडर होंगे। तो अगर मेरा 1 जुलाई 2021 जो अभी आने वाला है, जब से सेक्शन अप्लाई होगा, उसके पहले जितना भी मेरा आपसे परचेज हो गया है 1 अप्रैल 2021 से आगे, वो सब कंसिडर करके आई हैव टू डिटरमाइन द लिमिट ऑफ 50 लाख। अब क्योंकि मुझे 1 अप्रैल से आगे का परचेज कंसिडर करना है, तो इसमें सिनारियो ये हो सकता है कि मैंने 1 अप्रैल से जो आपसे परचेज किया है अभी 30 जून तक, वो वैल्यू 50 लाख को एक्सीड हो गई है। तो अब मुझे क्या करना है? तो अब मुझे 1 जुलाई से आगे तुरंत आपका टीडीएस डिडक्शन शुरू कर देना है। अदर वे राउंड, 1 अप्रैल से जो 30 जून तक मैंने आपको पेमेंट किया है, अगर वो 50 लाख को एक्सीड हो गया रहेगा, तो इमीडिएटली 1 जुलाई के आगे मुझे आपका उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। सो वापस सेम आंसर कि आपका परचेस या पेमेंट दोनों में से एक भी चीज अगर 50 लाख एक्सीड हो गई है और ये 1 जुलाई के पहले ही एक्सीड हो गई है, तो 1 जुलाई से तुरंत आपको उसका टीडीएस डिडक्शन शुरू करना है। अगर नहीं हुई है, समझिए अमाउंट 40 लाख ही हुई है, तो 1 जुलाई से मैं तुरंत टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा। जैसे ही मेरा वो 40 लाख में और 10 लाख का इजाफा होगा और मैं आपसे परचेस करूंगा और वो 50 लाख टच हो जाएगा, उसके आगे से मैं आपका डिडक्शन शुरू करूंगा। नेक्स्ट, एक और सवाल आता है, वेदर पेमेंट मेड शुड पर्टेन टू परचेज ऑफ करेंट ईयर ओनली। अब इसका मतलब क्या है? मेरे पास कुछ आपका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, क्योंकि आप मेरे रेगुलर सप्लायर हो, तो मैं आपसे कंटिन्यूअसली गुड्स खरीदते रहता हूं, पेमेंट करते रहता हूं। मेरे पास आपका एक ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, समझिए 10 लाख का, और मैंने इस साल आपसे परचेज किया है 45 लाख का। तो मेरा आपसे परचेज तो 45 लाख का ही हुआ है, जो कि 50 लाख एक्सीड नहीं हो रहा है, मगर मुझे जो आपको पेमेंट करना है वो ओपनिंग बैलेंस 10 लाख और ये 45 लाख मिला के 55 लाख करना है, जो मैं आपको इस साल 55 लाख का पेमेंट कर देता हूं। अब इस केस में चक्कर ये होता है या पॉइंट ये आता है कि मेरा इस साल का परचेज तो 50 लाख के नीचे है, मगर मेरा इस साल का पेमेंट 50 लाख को एक्सीड हो रहा है, क्योंकि इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंक्लूडेड है। अब इस केस में क्या होगा? क्या यहां पे टीडीएस अप्लाई होगा?
इसमें मैं मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे हिसाब से इस केस में टीडीएस अप्लाई नहीं होना चाहिए, बट यस दिस इज अ सेंसिटिव इशू, तो वी आर अवेटिंग द सर्कुलर। मगर यस मैं एक और चीज इसमें आपसे कहना चाहूंगा कि जहां पे भी आपको डाउट हो कोई भी चीज के एप्लीकेबिलिटी के बारे में, इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर डिसअलाउंसेस, बेटर ये है कि आप एक कंजर्वेटिव व्यू लेके आप उसका टीडीएस डिस्चार्ज कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी आपके सामने वाले को उसका क्रेडिट मिलने वाला है। सो जहां पे भी ये इन बिटवीन सिनारियोज है, जहां पे कंफ्यूजन है, मैंने आपसे मेरा व्यू शेयर किया जो कि थोड़ा सा लिटिगेटिव है, बट फॉर बीइंग ऑन द सेफर साइड यू मे डिसाइड टू डिस्चार्ज टीडीएस। नेक्स्ट, व्हाट शैल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट नोट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। ये सेम पॉइंट है। किससे रिलेटेड है ये पॉइंट कि मैंने आपसे पहले परचेस कर लिया, मगर अब उस वैल्यू में मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना था जिसका मैंने आपको डेबिट नोट दिया, तो क्या उस डेबिट नोट पे टीडीएस अप्लाई होगा? मेरे हिसाब से उसका आंसर नो आता है, क्योंकि आपने एक बार पूरे परचेस का टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, तो अगर आप डेबिट नोट देके उसका वैल्यू कम करते हो तो उसकी वजह से कोई भी आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, आपको पूरे ही टीडीएस का जो आपने डिस्चार्ज किया है वही लागू होगा, आपको कोई उसका रिफंड नहीं होगा। नाउ कम्स अनदर सेंसिटिव पॉइंट। काफी बार हमारा जो परचेज सेल का ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो गुड्स का वैल्यू होता है, उसके अलावा देयर आर सम एक्सपेंसेस विच आर चार्ज बाय द सेलर। सो लेट अस से आप जो मुझे गुड्स सप्लाई कर रहे हो, आपने आपके गुड्स की वैल्यू में ये कुछ एक्सपेंसेस ऐड किए हैं जो कि एक कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस है, जैसे कि पैकिंग, फ्रेट, इंस्टॉलेशन। अब इन सब केसेस में पहला सवाल कि क्या 50 लाख डिसाइड करते वक्त ये वैल्यू भी इंक्लूड करनी है, एक। दूसरा, टीडीएस डिडक्ट करते वक्त भी क्या ये वैल्यूज कंसिडर करनी है? आंसर इज, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। हमारा नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस क्या है? अगर जिस इनवॉइस में गुड्स है उसी इनवॉइस में अगर ये एक्सपेंसेस भी चार्ज हुए हैं, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स। और अगर आप इसको लिंक करेंगे तो ऐसा सिमिलर कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी है, मगर हम जीएसटी के प्रिंसिपल्स यहां पे अप्लाई करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मगर ये नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है कि जब भी हमारे पास कोई भी गुड्स आते हैं और उसमें ये चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, as per our normal accounting principles which is also accepted in income tax and even in companies law, हम ये expenses को goods की value में ही इंक्लूड करते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर सेम इनवॉइस में ये एक्सपेंसेस चार्ज है, यानी गुड्स वाले इनवॉइस में ही ये एक्सपेंसेस चार्ज है, सो इसके बारे में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस है वो यही है कि 50 लाख काउंट करते वक्त आपको ये एक्सपेंसेस इंक्लूड करके 50 लाख काउंट करना है, और टीडीएस डिडक्ट करते वक्त भी ये एक्सपेंसेस मिला के टीडीएस डिडक्ट करना है। हाँ, इसमें अगर आपको गुड्स का इनवॉइस अलग और ये एक्सपेंसेस का इनवॉइस अलग आता है, तो फिर आपको ये एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करना है, ना ही 50 लाख की लिमिट में, ना ही टीडीएस डिडक्ट करते वक्त। सो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में जहां पे गुड्स का और इन एक्सपेंसेस का आपको इनवॉइस अलग आता है, तब आप ये एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करेंगे, आपको उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये पूरा ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स से डील करता है, तो अब सवाल ये आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गुड्स। अब इंटरेस्टिंगली इनकम टैक्स लॉ ने या आज तक इशू किए हुए किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड सर्कुलर या प्रेस रिलीज ने अब तक गुड्स को डिफाइन नहीं किया है। सो देयर इज नो डेफिनेशन दैट वी हैव अंडर इनकम टैक्स लॉ एनी ऑफ इट्स सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस डिफाइनिंग गुड्स। देन द क्वेश्चन इज, फिर हमें डेफिनेशन कौन सा है? तो हमारे पास काफी सारे डेफिनेशन है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेंट्रल सेल्स टैक्स में जो कि अब एप्लीकेबल नहीं है, सीजीएसटी एक्ट में। अब इनमें से हमने कौन सा डेफिनेशन लेना चाहिए? सो आई पर्सनली बिलीव कि हमारे लिए ज्यादा सूटेबल डेफिनेशन है सेल ऑफ गुड्स का, बिकॉज हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सेल और परचेज ऑफ गुड्स है। तो हमारे लिए जीएसटी का गुड्स का डेफिनेशन यहां पे लागू नहीं होगा, बिकॉज जीएसटी इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, और सप्लाई काफी वाइड है डेफिनेशन, जबकि हमारा ट्रांजैक्शन इज स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। इस वजह से हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डेफिनेशन अप्लाई करना चाहिए। अब अगर हम उस डेफिनेशन से जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए गुड्स मानी जाएंगी। अब इसमें कुछ चीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो मूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो बहुत पुराने से चलते आ रहा एक कॉन्सेप्ट है कि गुड्स में वही चीजें आएंगी जो कि मूवेबल है। इसका मतलब अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, जैसे कि मैंने आपसे लैंड खरीदा या मैंने आपसे कोई फ्लैट
या शॉप या कोई बिजनेस प्रेमाइसेस खरीदे, मैंने कोई फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज किया या मैंने आपसे ये कंस्ट्रक्ट करवा के लिया, ये सारे केसेस में क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मुझे टीडीएस अप्लाई नहीं करना है। सिमिलरली कोई भी कमोडिटी जो कि मूवेबल है, शेयर्स और सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें जो आपके सामने यहां पे है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो हमें अप्लाई करना है यहां पे व्हेन वी आर डिसाइडिंग टीडीएस एप्लीकेबिलिटी। अब इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक विजिबल चीज नहीं है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है, हम उससे टेंजिबल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो सवाल ये था कि क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है या नहीं है। अब ये मैटर सेटल्ड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ आंध्रा के केस में डिसाइड किया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, भले वो टेंजिबल ना हो तो उसे गुड्स मानना चाहिए। सिमिलरली कस्टम्स टैरिफ एक्ट में भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेसिफिक एचएसएन कोड है, यानी वो भी इसे गुड्स मानते हैं। तो स्क्वायरली आज तक के जितने भी लॉज है टैक्सेशन के, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, उसने इलेक्ट्रिसिटी को गुड्स माना है, सो इट will fall under this section of 194Q। मगर अब उससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब मैं वापस पिछले सर्कुलर पे जाता हूं जो इसी पॉइंट से रिलेटेड पिछले साल जब टीसीएस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए लाया था, तो उसमें जो क्लैरिफिकेशन था उस पे मैं जाता हूं, जो मैं बिलीव करता हूं कि बहुत जल्दी यहां पे भी सेम क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या उससे रिलेटेड जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सर्टिफिकेट्स हैं, ये अगर आप किसी पावर एक्सचेंज के थ्रू परचेज या सेल करते हो, तो उसको उन्होंने टीसीएस अप्लाई नहीं होगा, ये क्लैरिफाई किया था। सो सेम लाइंस पे हम बिलीव कर सकते हैं कि उसको टीडीएस भी अप्लाई नहीं होगा। मगर काफी बार जो हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से आती है, ना कि पावर एक्सचेंजेस से। सो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, यानी मैं जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहा हूं वो किसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से कर रहा हूं, तो उसे टीडीएस अप्लाई होगा। ये पिछले साल टीसीएस में भी एप्लीकेबल था, सो सेम प्रोविजन वुड कंटिन्यू ओवर हियर, एंड आई डोंट बिलीव कि इसको कुछ भी कॉन्ट्ररी क्लैरिफिकेशन आएगा। सो अगर आप किसी पावर जनरेशन कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी बाय करते हैं और आपके बाकी सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट ट्रांजैक्शंस ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। अब शेयर्स और सिक्योरिटीज में थोड़ा सा इशू ये है कि काफी बार क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होते हैं, जहां पे आप जानते ही नहीं कि सामने वाला पार्टी कौन है, तो उधर टीडीएस या टीसीएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए वापस जो पिछले साल सर्कुलर आया था टीसीएस से रिलेटेड, उसने क्लैरिफाई किया था कि अगर आप सिक्योरिटीज या शेयर्स का ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो उस पर टीसीएस अप्लाई नहीं होगा। आई बिलीव सिमिलर क्लैरिफिकेशन वुड कम इवन फॉर टीडीएस। सो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज, कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना नहीं पड़ेगा। मगर ये सिर्फ तभी लागू होगा इफ यू आर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो फिर अब सवाल आता है, जहां पे आपने ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस की, यानी मैंने पर्सनली, मुझे अगर कोई पता है किसी को शेयर्स बेचने, मैंने उससे खरीदे, या जो शेयर्स लिस्टेड ही नहीं है वो तो डायरेक्टली आप बाय करेंगे, या जहां पे आईपीओ आता है किसी कंपनी का, या प्राइवेट प्लेसमेंट्स होते हैं, या कंपनी राइट या बोनस शेयर्स इशू करती है, तो क्या इस केस में फिर टीडीएस एप्लीकेबल होगा? माय अंडरस्टैंडिंग इज यस, क्योंकि इसको पिछले वाले सर्कुलर ने जो टीसीएस के लिए आया था कोई एक्सक्लूजन नहीं दिया था। अगर मैं उसी सर्कुलर को यहां पे अप्लाई करूं, तो पिछले साल सिमिलर ट्रांजैक्शन को टीसीएस अप्लाई था, तो अभी ये जो नया टीडीएस आ रहा है, अंटिल अनलेस इसको कोई कॉन्ट्ररी क्लैरिफिकेशन आता है, तो ये ट्रांजैक्शंस को टीडीएस अप्लाई होना चाहिए। अब आता है एक इंटरेस्टिंग केस। अब इसी में एक और केस आ गया कि क्या होगा अगर कंपनी ने खुद के शेयर्स बायबैक किए। अब क्या शेयर्स गुड्स हैं? आंसर इज यस। क्या बायबैक करना ये परचेज या सेल में आता है? तो इसके लिए भी देयर इज अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ अनारकली साराभाई, जहां पे कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि यस, इवन बायबैक ऑफ शेयर्स इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और सेल। जैसा भी आप कहें, ऑब्वियसली इट इज फ्रॉम द कंपनी साइड, इट इज ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज। तो अब सवाल आता है कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर से अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट शेयर्स बायबैक करता है, तो क्या उसे टीडीएस अप्लाई होना चाहिए? अगर मैं अब तक के डिस्कशन के हिसाब से आपको जवाब दूं, तो आंसर वुड बी यस, टीडीएस अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि शेयर्स ये गुड्स है और आपको उसका जब तक कोई भी
स्पेसिफिक एक्सक्लूजन नहीं आता है गवर्नमेंट के साइड से किसी भी सर्कुलर या प्रेस रिलीज के फॉर्म में, तो इवन बायबैक ऑफ शेयर्स पे कंपनी को टीडीएस अप्लाई होगा, उसे डिडक्ट करना पड़ेगा, अज्यूमिंग ऑल दी अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पर अगर वैसा हुआ तो उसमें एक नया चैलेंज आ जाएगा, वो ये कि फिलहाल बायबैक ऑफ शेयर्स, अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी शेयर्स बायबैक करती है तो उसका टैक्स कंपनी को खुद डिस्चार्ज करना पड़ता है अंडर सेक्शन 115 QA, बिकॉज ऑफ विच ये ट्रांजैक्शन शेयर होल्डर के हाथों में एग्जम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 1034A। अब ये वही एग्रीकल्चर वाली बात हो जाएगी कि शेयर होल्डर के लिए वो ट्रांजैक्शन, वो इनकम एग्जम्प्ट है, मगर फिर भी कंपनी क्योंकि उसका बायबैक कर रही है और उसको ये टीडीएस अगर अप्लाई हो जाता है तो वो शेयर होल्डर को जो भी पेमेंट करेगी बायबैक के अगेंस्ट, उसका उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, भले इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ये ट्रांजैक्शन शायद एग्जम्प्ट हो, शायद मींस वो पक्का एग्जम्प्ट है, मगर उसका भी टीडीएस शेयर होल्डर का डिडक्ट होगा। ये सेम इशू है सिमिलर टू वो जो ऊपर एग्रीकल्चरल गुड्स से रिलेटेड मैंने पॉइंट हाईलाइट किया था। नेक्स्ट, अब अगला सवाल आता है कि क्या मैं अगर मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई असेट्स परचेज करता हूं जो मुझे मेरे बिजनेस में यूज होने वाले हैं, क्या उसको टीडीएस अप्लाई होगा? आंसर इज यस। अगर वो गुड्स के डेफिनेशन में आता है, मतलब कि अगर मैं लैंड बिल्डिंग जैसा कोई इमोबल प्रॉपर्टी बाय करता हूं तो मुझे टीडीएस नहीं डिडक्ट करना है, पर उसको छोड़ के अगर मैं कोई भी मूवेबल असेट बाय करता हूं लाइक प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इवन कैपिटल असेट्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। अब इंटरेस्टिंगली एक अलग सवाल आता है, व्हाट इफ आई एम बाइंग सम पर्सनल असेट्स? तो लेट अस से एज अ बायर, मैं बायर के कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, मेरा बिजनेस का टर्नओवर पिछले साल का 10 करोड़ के ऊपर है, तो एज अ बायर आई एम फिटिंग इन द डेफिनेशन ऑफ बायर, बट व्हाट आई एम परचेजिंग फ्रॉम यू इज अ पर्सनल असेट। सो लेट अस से मैं अपने पर्सनल यूज की कोई चीज परचेज करता हूं और अज्यूमिंग वो ट्रांजैक्शन 50 लाख के ऊपर जाता है। अब इसका अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो बेस्ट एग्जांपल इज गोल्ड, क्योंकि वही एक हाई वैल्यू चीज है जहां पे 50 लाख के ऊपर जाने के चांसेस है। तो क्या मुझे उसका भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा? टेक्निकली अगर आप सेक्शन के हिसाब से जाए तो आंसर विल बी यस, क्योंकि इसको कोई स्पेसिफिक एक्सक्लूजन या एग्जम्पशन नहीं है, कहीं पे भी पूरे सेक्शन में ये नहीं कहा है कि परचेज ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस, यानी अगर मैं पर्सनल यूज के लिए भी गुड्स बाय करता हूं और मैं बायर के डेफिनेशन में फिट हो रहा हूं तो मुझे उसका भी टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। ये अभी की पोजीशन है। यस, अगर इसको गवर्नमेंट ने बाय क्लैरिफिकेशन अगर एक्सक्लूड किया तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इफ आई एम बाइंग सम सेकंड हैंड गुड्स या स्क्रैप? काफी बार मैं स्क्रैप बाय करता हूं जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली आंसर इज यस, स्क्रैप एंड सेकंड हैंड थिंग्स आर आल्सो गुड्स, तो उसको भी टीडीएस अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इशू आता है, व्हाट इफ आई एम बाइंग सॉफ्टवेयर? अगर मैं सॉफ्टवेयर बाय करता हूं तो फिर पोजीशन क्या है? अब यहाँ पे आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ साल पहले ही इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 9 में, जहां पे उन्होंने रॉयल्टी के डेफिनेशन को एक्सपांड करके कहा कि इवन बाइंग ऑफ सॉफ्टवेयर वुड बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। तो इंटरेस्टिंगली इनकम टैक्स लॉ में अगर मैं सॉफ्टवेयर बाय करता हूं तो वो रॉयल्टी में डिफाइन होके कवर हो सकता है अगर वो सेक्शन 9 के उस अमेंडमेंट में कवर हो जाता है, और अगर वो रॉयल्टी में कवर हो जाता है तो फिर मुझे ऑलरेडी उसका टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194J, जो कि रॉयल्टी को एप्लीकेबल है। अब इस केस में क्वेश्चन आता है, फिर क्या मुझे 194Q भी अप्लाई होगा? आंसर इज नो। अगर सॉफ्टवेयर रॉयल्टी माना जाता है एज पर सेक्शन 9 और मुझे उसका टीडीएस एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 194J, देन डेफिनेटली आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एनी टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। अब यहां पे मगर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इन केस ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहां पे उन्होंने कहा है कि जब भी आप ऑफ द शेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाय करते हैं इट विल बी ट्रीटेड एज गुड्स, और ये क्योंकि पुराना डिसीजन है इसको सेल्स टैक्स अप्लाई होगा, ये डिसीजन आया था। अब सिंपल आंसर इज, अगर आपने सॉफ्टवेयर बाय किया है और वो 194J में कवर होके उसका आपको टीडीएस डिडक्ट करना है बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज रॉयल्टी, देयर इज नो चैलेंज, आपको उसका 194Q यानी प्रेजेंट सेक्शन का टीडीएस लागू नहीं होगा। बट अदरवाइज अगर वो 194J में कवर नहीं हो रहा है और वो एक कैंड सॉफ्टवेयर है, वो एक स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर है, तो उसका आपको 194Q में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर वो 194J में कवर नहीं होता है और वो एक ऑफ द शेल्फ स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर है जो आपने
परचेस किया है। नेक्स्ट आता है एक इंपॉर्टेंट इशू, जैसा मैं स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहा हूं, सिमिलर ट्रांजैक्शन पे, यही गुड्स के ट्रांजैक्शन पे पिछले साल देयर वाज अ प्रोविजन फॉर कलेक्टिंग टीसीएस बाय द सेलर, यानी पिछले साल तक आप एज अ सेलर सेम ट्रांजैक्शन पे सिमिलर केस में मेरा टीसीएस कलेक्ट करते थे, और इसी साल सेम ट्रांजैक्शन में बायर को कहा है कि आप टीडीएस डिडक्ट करो। तो अब सवाल आता है, जब सेम ट्रांजैक्शन हो रहा है कि मैं आपसे गुड्स बाय कर रहा हूं, यानी आपके एंड पे आप मुझे सेल कर रहे हैं, मेरे एंड पे मैं आपसे बाय कर रहा हूं, इसको ऑलरेडी पिछले साल से आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे मुझसे, और अब इस साल से 1 जुलाई से टीडीएस आ गया, तो दोनों में से क्या अप्लाई होगा? अब इस केस में वी गो टू द सेक्शन, और ये सेक्शन का लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं, जहां पे आप कंपैरेटिव लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 194Q जो अभी हमारा नया सेक्शन है, वो सब सेक्शन 5 में क्या कहता है? इट सेज दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन ऑन विच, पहला, टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये जो सेक्शन है 194Q, ये कब अप्लाई नहीं होगा? जब ऑलरेडी इस ट्रांजैक्शन पे कोई और दूसरा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, या फिर इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 206C अदर देन ट्रांजैक्शन टू विच सेक्शन 1H अप्लाइज। इसका मतलब क्या? 194Q तभी अप्लाई होगा जब आपके ट्रांजैक्शन को दूसरा कोई भी टीडीएस लागू नहीं होता है, या दूसरा कोई भी टीसीएस लागू नहीं होता है। मगर अगर आपके ट्रांजैक्शन को 206C 1H वाला टीसीएस अप्लाई होता है, जो कि लेटेस्ट से पिछले साल से आया है, तो अब तक आप मेरा टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे अंडर सेक्शन 206C 1H, तो अब इस 1 जुलाई से क्या होगा? तो 1 जुलाई से ये होगा, अगर आपके साइड से टीसीएस भी एप्लीकेबल है और मेरे साइड से टीडीएस भी एप्लीकेबल है, तो 1 जुलाई से मैं उसका टीडीएस डिडक्ट करूंगा, यानी अब आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब पोजीशन ये हो जाएगा कि अगर सेम ट्रांजैक्शन को 206C 1H का टीसीएस लागू था, जो अब तक आप मुझसे कलेक्ट कर रहे थे, पर 1 जुलाई ऑनवर्ड्स अब अगर मैं बायर के सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता हूं, तो नाउ यू विल नॉट बी कलेक्टिंग माय टीसीएस, बट आई विल बी डिडक्टिंग योर टीडीएस अंडर 194Q। मगर यहां पे मैटर खत्म नहीं होता है। जब आप इन दोनों सेक्शंस का लैंग्वेज साथ में पढ़ते हैं, तो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज ध्यान में आती है, वो ये कि एज अ सेलर आपका ऑब्लिगेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों सेक्शंस का कंबाइंड रीडिंग ये उजागर करता है कि अगर मैं एज अ बायर, टीडीएस भले मुझे डिडक्ट करना एप्लीकेबल था, अगर मैं अपना टीडीएस डिडक्ट नहीं करता हूं, देन आपको एज अ सेलर आपका टीसीएस कलेक्ट करते रहना पड़ेगा। इट मींस आपका ऑब्लिगेशन मेरे ऑब्लिगेशन के बाद है। मतलब अगर दोनों सेक्शन साइमल्टेनियसली एप्लीकेबल है, तो लॉ के हिसाब से बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आपका टीडीएस कट करना चाहिए। मगर अगर बायर अपना ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर बायर यानी मैं आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता हूं, या लेटर से मुझे टीडीएस डिडक्ट करना लागू नहीं होता क्योंकि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, तो इन दैट केस आपको टीसीएस कंटिन्यू रखना है। अब इसीलिए अगर मुझे टीडीएस लागू नहीं है, तो आपका टीसीएस चालू रहेगा। सेकंड, मुझे टीडीएस लागू है मगर किसी कारण से, जैसे कि क्योंकि अब ये सेक्शन नया है और आई एम नॉट अवेयर कि मुझे टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, इसलिए अगर मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करता हूं, तभी भी आपको आपका टीसीएस कलेक्शन चालू रखना है। इसका मतलब टीडीएस और टीसीएस में टीडीएस इज सुपीरियर, हाउएवर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुआ है। सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एज अ सेलर। तो आप जिन जिन का अभी तक टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे, आपको उन सबसे डिक्लेरेशन लेना है कि भाई क्या आप अभी मेरा टीडीएस कट करने वाले हो। अगर वो डिक्लेरेशन देता है कि यस मैं टीडीएस कट करूंगा, तो ही आपने टीसीएस कलेक्ट करना बंद करना है, वरना एज अ सेलर आपको टीसीएस कलेक्शन चालू रखना चाहिए टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर इश्यूज। नेक्स्ट, अब एक और इशू आता है, दैट इज रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल से रिलेटेड इशू ये है कि इसको भी, क्योंकि मोटर व्हीकल गुड्स है, 194Q अप्लाई तो होने वाले टीडीएस का, और इसको दो अलग अलग टीसीएस एप्लीकेबल थे। एक है 206C 1H जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसको एक और टीसीएस एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 206C 1F। अब पहली बात तो इसको दो दो टीसीएस एप्लीकेबल है, तो उसके बारे में ऑलरेडी पिछले साल सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया था कि कब 206C 1H का टीसीएस एप्लीकेबल होगा और कब 206C 1F का टीसीएस एप्लीकेबल होगा।
अब इस साल इसमें नया एडिशन क्या हो गया है? अब इस साल नया एडिशन हो गया कि अब बायर को टीडीएस डिडक्ट करने का रूल आ गया अंडर 194Q। अब एज अ बायर क्या करना है और एज अ सेलर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब हम ये सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन की बात करें, विच इज परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। अब इसमें ध्यान से सुनिए, अब इसको अब तक क्या एप्लीकेबल है? टीसीएस। अगर इसको टीसीएस एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 206C(1)(f), तो अगर आप एज अ सेलर मेरा टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 206C(1)(f), तो ये टीडीएस 194Q आने के बावजूद आपका टीसीएस चालू रहेगा, क्योंकि 194Q के एक्सेप्शन है बाकी सारे टीसीएस एक्सेप्ट 1H। तो क्योंकि आप 1F में टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे, ये सेक्शन टीडीएस का आने के बाद भी आपका 206C(1)(f) का, यानी ये वाला टीसीएस का कलेक्शन चालू रहेगा। मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा। मगर अगर आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे अंडर सेक्शन 206C(1)(h), तो जैसा हमने पिछले स्लाइड में भी देखा कि 194Q इज सुपरसीडिंग 206C(1)(h। तो अगर आप 206C(1)(h) में टीसीएस कलेक्ट कर रहे थे ऑन सेल ऑफ मोटर व्हीकल, तो अब आपको वो नहीं करना है, क्योंकि अब मुझे उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q, ऑब्वियसली विद द प्रीवियस स्लाइड्स कंडीशन कि आपको ये मेरे से डिक्लेरेशन लेना है कि मैं मेरा टीडीएस डिडक्ट करूंगा। अगर मैं वैसा नहीं करता हूं तो आपका टीसीएस एप्लीकेबिलिटी चालू रहेगा। सो दिस इज व्हाट इज द फाइनल पोजीशन कि अगर टीसीएस अंडर 206C(1)(h अप्लाई हो रहा था, तो अब 1 जुलाई से 194Q में मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा, आपको टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। मगर अगर टीसीएस अंडर 206C(1)(f एप्लीकेबल था, तो 194Q में मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा, आपको 206C(1)(f का टीसीएस चालू रखना है। सो दिस इज ऑल issues relating to this particular TDS. This is all from my side. Now I keep the forum open for you all to raise your doubts. So please feel free to ask your doubts or questions, if any. Yes. Are there any questions? Either you can unmute or you can put it in the chat box. We can have it from there in the chat box also. Yes, sir or ma'am, who is present here? Pooja ma'am, are you present? Yeah. Hi Vishal, I am there. Yeah, ma'am. Are there any questions? I hope my entire deliberation was smooth. There was no technical issue. Yeah, that was very smooth. There are some questions and I request all the participants also. So if you have any question, you can ask now. The question Because I that cannot has see been the asked question. till now. Yeah, I'm Yeah, just please. sharing it. Give me a minute. Sure. There is one question appearing on the screen by Mr. Naresh Karmali. A person is selling goods to the army supply depot and I feel they will not deduct TDS. In such situations, seller will have to charge TCS on sales and file TCS return. Am I correct? I guess this See. is the... Yeah. Sorry. Get it. मैम इन दिस if जैसा इन्होंने खुद से कहा है नरेश जी ने कि he feels that the buyer will not be deducting TDS, maybe because the goods are being sold to army and the army won't be deducting TDS. If that is the case, if army is not deducting TDS, then obviously सप्लायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टीसीएस कलेक्शन चालू रखना है। और मे बी इसमें यह भी हो सकता है कि फॉर सच ट्रांजैक्शन वी मे गेट एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट बाय वे ऑफ अ क्लैरिफिकेशन। सो अगर वो नहीं आता है और आर्मी आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है, देन यू आर करेक्ट सर, you have to continue collecting TCS. Yes, ma'am. So next question is from Mr. MJ. That is, I think that question is not complete here. Book transaction or currency transaction, whichever is earlier. Is it related to something related correct. to the time of TDS? I think what they mean to say by currency transaction is, I think they mean the time of payment. So yes, the date of entry in books or the date on which you are making payment. This is what I am getting, MJ sir, from your question or your meaning of currency transaction. So whichever is earlier, yes, you are correct. TDS यहाँ पे deduct करना है, whichever is earlier.
whichever is earlier. Next question is from Shriram Education. My turnover is 5 crore with one principal company. Can I deduct TDS when purchases? Moreover, they deduct TCS on sales to me. Okay. Now here I'm assuming that as a buyer, your turnover is exceeding 10 crores firstly. Now you are saying, one second, you are buyer or seller? In your example, you are I buyer. guess Okay. they are the ना buyer. buyer, क्योंकि उन्होंने आगे कहा है ना, when purchase moreover they deduct TCS. Now see, if they are collecting TCS on sale to you, then the question is whether now you will be deducting TDS. Answer is yes. If all the conditions of TDS are applicable, are satisfied, like आपका टर्नओवर खुद का पिछले साल का 10 करोड़ के ऊपर है, और जैसा आपका तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल कंपनी के साथ ऑलरेडी 5 करोड़ का टर्नओवर है, यानी वो 50 लाख के ऊपर जा रहा है, सो फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स आप उनका TDS डिडक्ट करेंगे एंड देन दे शुड स्टॉप कलेक्टिंग TCS फ्रॉम यू. सो आपका And they रिस्पॉन्सिबिलिटी should पहला take है. I guess they should take a confirmation from the company that they will या not collect the इनफैक्ट अब TCS. इनका काम ये है कि इन्होंने सामने कंपनी को बता देना है कि भाई आप अब से हमारा TCS कलेक्ट ना करे, क्योंकि अब मैं आपका TDS डिडक्ट करने वाला हूं. मगर अगर आप ऐसा पूछना चाहते हैं कि सामने वाला मेरा TCS अब कलेक्ट करेगा ही, फॉर एग्जांपल मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज या वट एवर रीजन, तो क्या मैंने TDS नहीं डिडक्ट किया तो चलेगा? आंसर इज नो, बिकॉज यू आर हैविंग द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. सामने वाला अगर आपका TCS डिडक्ट कलेक्ट करता भी है तो भी आप आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं होते. यू हैव टू कंपल्सरी डिडक्ट TDS, वरना जो मैंने आपको इम्प्लीकेशंस बताए वो आप पे अप्लाई होंगे, आपको इंटरेस्ट अप्लाई होगा, यू विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट, एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे आपके इनकम कंप्यूटेशन. यस मैम. Next question is from CMA Abhay Sinha ji. If in April 21 purchase amount exceeded rupees 50 lakh, the liability to pay TDS is before 7th of the next month. What about the interest liability for late payment? फाइन अभय जी, फर्स्टली लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, क्योंकि TDS आने वाला है 1 जुलाई 2021 से. सो अगर आपका अप्रैल में कुछ भी एक्सीड हुआ है या अप टू जून आपका कुछ भी एक्सीड हुआ है तो उस पर कोई TDS लाइबिलिटी नहीं है. अगर आपका 30 जून तक कोई भी ट्रांजैक्शन 50 लाख को एक्सीड हो चुका है तो आप सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल हो गए हो, मगर वो लायबल हो गए हो आप 1 जुलाई 2021 के आगे वाले ट्रांजैक्शन के लिए. तो अगर आपका अप्रैल में, मई में या जून में, ये तीनों मंथ्स मिला के किसी भी मंथ में आपका टर्नओवर सामने वाले पर्सन के साथ जो परचेज टर्नओवर है वो एक्सीड भी हो चुका है 50 लाख को, आपको उसका बैकडेटेड TDS डिडक्ट नहीं करना है, ना ही आपको उसका इंटरेस्ट अप्लाई होगा. आप सिर्फ TDS के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बट दैट एलिजिबिलिटी विल स्टार्ट फ्रॉम all transactions from 1st July 2021 onwards. तो आपके एग्जांपल में there is no interest liability in your case. Yes ma'am. Question from Mr. Sanjay. What about the purchase of capital assets? I think sir I have already answered this. Maybe आपका एक क्वेश्चन पहले आया रहेगा, मैंने ऑलरेडी मेरे इश्यूज वाले स्लाइड में आंसर कर दिया है. So it is Correct, applicable. correct. One question from Mr. Srinivas Rao. Sir, please explain again about the 2 years IT returns and 50,000 rupees TDS. सर आपको मैं सिंपल बताऊं तो अब आपका पर्सनल इनकम डिटेल सबके साथ शेयर करना पड़ेगा. सो इफ यू आर द सेलर एंड आई एम योर बायर, जैसा मैंने एग्जांपल लिया, मैं बायर हूं और आप मेरे सेलर हो, तो मुझे आपका TDS जो कट करना है वो 0.1% से करना है या 5% से करना है. इसलिए मैं आपसे आपके पिछले 2 साल के इनकम टैक्स के रिटर्न्स मांगूंगा. सो यू हैव टू प्रोवाइड मी कंपल्सरली योर पास्ट 2 years इनकम टैक्स रिटर्न्स, so that I will get to know कि whether you have filed those returns in time, and also you have to give me your 26 AS so that I can check whether your TDS and TCS combined has exceeded 50,000. If both these conditions are satisfied, आपके पिछले दोनों साल का रिटर्न टाइम लिमिट में फाइल्ड है, तो मैं आपका TDS 0.1% से डिडक्ट करूंगा. बट अगर आपका पिछले दोनों साल में से 1 साल का भी रिटर्न टाइम लिमिट में फाइल नहीं हुआ है एंड आपका पिछले दोनों साल का जो TDS TCS का अमाउंट है वो 50,000 एक्सीड हुआ है, देन आई विल बी डिडक्टिंग योर TDS एट 5%. एंड ऑल्सो इफ यू डू नॉट प्रोवाइड मी दिस इंफॉर्मेशन, कि भाई आप अपना इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते बिकॉज ऑब्वियसली इट इज योर पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, देन आई हैव नो चॉइस लेफ्ट
बट टू डिडक्ट टीडीएस एट 5%, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं प्रोवाइड करते, सो आई विल बी अज्यूमिंग कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया टाइम लिमिट में, आई विल हैव टू डिडक्ट योर टीडीएस एट अ हायर रेट. आई होप द पॉइंट इज क्लियर, सर. यस मैम. There are a few more questions. Just give me a minute. यस मैम. There is one I'm not good able to see question. the screen, but I don't know why. You are not able to see this chat box? नो मैम. प्राइवेट चैट बॉक्स है, फिर शायद कमेंट्स ओपन करूंगा उसमें आएगा. No, comments में है. It is in comments. Okay, fine. Yes ma'am. Yeah. So but you can go ahead with the question. Yeah, the question is, sir, if there is work contract, will 194Q apply? No sir, because मोहित जी 194Q इसलिए भी नहीं अप्लाई होगा क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट काफी बार इमोबल प्रॉपर्टी का होता है. दूसरी बात, उसको 194C अप्लाई होता है. सो इफ देयर इज 194C अनदर टीडीएस इज एप्लीकेबल, देन इट विल नॉट अप्लाई अंडर 194Q. यस मैम. Question from Mr. Kalpesh. Wine shop dealer is required to deduct TDS of the buyer who collect TCS. And I think this question is not complete. नहीं, वो नीचे शायद कंटिन्यू है. हाँ, And नीचे wine shop continue dealer है. TCS on sale. Okay. नहीं, पहली बात सर, टीडीएस आप बायर का नहीं डिडक्ट करते, बायर सेलर का टीडीएस डिडक्ट करता है. और अगर आपका वापस वही सवाल है कि ऑलरेडी उस पे टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, सो आंसर इज सी. जिस पे टीसीएस कलेक्ट हो रहा है 206C1H छोड़ के बाकी किसी भी दूसरे प्रोविजन में, जैसा कि आपके केस में 206C के दूसरे प्रोविजन में सबसेक्शन 1 में इसका टीसीएस कलेक्ट होता है, ना कि 1H में. क्योंकि इसका टीसीएस सबसेक्शन 1 में कलेक्ट होता है तो अब 194Q में बायर इसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा. रीजन इज 194Q इज सब्सिडियरी प्रोविजन. 194Q में अगर दूसरे किसी भी सेक्शन में टीडीएस या टीसीएस अप्लाई होता है तो 194Q अप्लाई नहीं होगा. 194 सिर्फ एक ही सेक्शन को सुपरसीड करता है, दैट इज टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H. तो अगर टीसीएस 206C1H में कलेक्ट हो रहा है तो ही सिर्फ वो बंद करके टीडीएस लागू होगा. दूसरे किसी भी सेक्शन में अगर टीसीएस कलेक्ट हो रहा है तो वो चालू रहेगा. मुझे 194Q में टीडीएस डिडक्ट करने का अथॉरिटी नहीं है. सो आपके केस में आपका टीसीएस चालू रहेगा. यस मैम. Next question is from Mr. Dada Patil. April to June, if we have already purchased material, I think this question is already covered. This is the same question as yes. Similar to what earlier Mr. another. Abhay. Yes. Fine, ma'am. If party combinedly claim goods and freight in one bill, 194Q is applicable for freight amount or 194C is applicable for freight? My understanding is it will be 194Q, जैसा हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि क्योंकि उसे पार्ट ऑफ गुड्स का ही वैल्यू माना जाता है इवन फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस. तो आप अगर उसको सेपरेटली अकाउंट फॉर नहीं कर रहे आपके बुक्स में, सो आप उसका 194C का टीडीएस वैसे भी डिडक्ट नहीं करते. सो इट गेट्स स्क्वायरली कवर्ड और इट विल गेट स्क्वायरली कवर्ड इन 194Q ओनली. यू विल कंटिन्यू टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194Q इटसेल्फ. Is it applicable on import of goods? No, I have already answered this. Importer इसका TDS डिडक्ट नहीं कर सकता. If buyer is refused to deduct TDS and seller deduct TCS, in that case 30% per value will disallowed. Fine. See, the point is कि अगर TDS applicable है फर्स्टली, और अगर बायर वो TDS डिडक्ट नहीं करता है और सेलर ने टीसीएस भले कलेक्ट कर लिया तो भी बायर को डिसअलावेंस 30% वाला एप्लीकेबल रहेगा. अब इसको एक छोटा सा एक्सेप्शन है मिलिंद जी. वो एक्सेप्शन ये है कि अगर सामने वाले पर्सन यानी सेलर का जो मेरे से इनकम हो रहा है वो इनकम अगर सेलर ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर कर लिया है, जिसका वो मुझे प्रूफ देता है कि यस मैंने जो उससे गुड्स खरीदे उससे जो उसको इनकम हुआ है वो उसने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर कर लिया है, और वो मुझे उसका प्रूफ देता है, तो मुझे वो 30% परचेज वैल्यू का डिसअलाउ नहीं करना है. बट सिंपली क्योंकि वो मेरा टीसीएस कलेक्ट कर रहा है तो उस वजह से
मेरा डिसअलाउंस ऑफ 30% खत्म नहीं होगा, मुझे 30% फिर भी डिसअलाउ करना ही पड़ेगा. A lot of questions are there. People have lots of confusion for these provisions. I'm What if fine, my ma'am. You can continue. Yeah. What is my turnover? What if my turnover is 9 crore with goods and 1 crore with professional service? Would I come under 10 crore scenario for deducting TCS? Yeah, firstly, it has to be exceeding 10 crore. So let us say आपका वो जो 9 और 1 crore है वो थोड़ा सा और ज्यादा है MJ जी. So in that particular case, आंसर इज yes. एज अ बायर अगर आपका खुद का सेल टर्नओवर जो कि गुड्स और सर्विस मिला के 10 करोड़ एक्सीड होता है तो यस आपको टीडीएस डिडक्शन एप्लीकेबल होगा. आपने शायद गलती से टीसीएस टाइप किया है, आपको टीडीएस डिडक्शन एप्लीकेबल होगा. यस. From Mr. Raghu. Sir, if seller claimed TCS in his invoice, I am deducting TDS under 194Q. Can I stop payment of TCS against such invoice? Definitely, because now once 194Q is applicable, there is, as I again repeat, अगर वो 194Q का टीडीएस आपका अप्लाई होता है और सामने जो टीसीएस है वो सेक्शन 206C1H का है तो आप वो टीसीएस पे करना बंद कर सकते हैं क्योंकि 194Q विल सुपरसीड द टीसीएस अंडर 206C1H. मगर अगर सामने वाला सेलर आपको जो टीसीएस आपसे कलेक्ट कर रहा है वो 206C1H छोड़ के और किसी भी सेक्शन में कलेक्ट करता है तो वो सेलर करेक्ट है, वो आपसे अभी भी टीसीएस कलेक्ट करेगा, आप उसके गुड्स का टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते. तो पहले आप ये इंश्योर करिए, फर्स्ट इंश्योर रघु जी, what is the section under which the seller is collecting your TCS. If he is collecting your TCS under section 206C1H, then only you can stop the TCS payment. Yes, ma'am. The next question is from Mr. Yatin Randev. New section 194Q have more working at the time of filing as compared to section 206. That is his view. Is it okay if we do continue with section 206 by ignoring 194Q? Any interest or any liability arises on? Sir, I will again repeat, Yatin ji, same answer. We don't have a choice. The provisions are very clear. कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, कब टीडीएस अप्लाई होगा और कब टीसीएस अप्लाई होगा. सो अगर टीडीएस अप्लाई होता है, भले वो वर्किंग इंक्रीज कर रहा है, यू हैव टू कंटिन्यू विद टीडीएस. Next question is from Mr. Milind Pandit. Sir, if 2 years return filed on time and TDS above rupees 50,000, in this case TDS rate will be 0.1% or 5%. 0.1%. वो दोनों कंडीशंस को साथ में उन्होंने लिया है. या तो दोनों साथ में सेटिस्फाई होते हैं तो ही आपको 5% आएगा, दोनों में से एक भी नहीं होते हैं तो आपको 0.1% ही आएगा. And we have to check the 50,000 rupees limit for the both years. Yeah, 50,000 is per year, and that is TDS and TCS combined. It's a very wonderful session, I must say. Now I request all the participants to give the vote of thanks to Vishal ji. Thank you very much. Thank you educating. I personally believe and I personally realize कि आपका जो समझाने का तरीका होता है सर, that is very nice. बहुत ही simplest way में you explain all the provisions. और मेरे भी जितने डाउट थे, they all get cleared by your presentations. Oh, thank you very much. Thank you educating. Thank you Arun sir. Thank you Pooja ma'am for inviting me and giving me this beautiful opportunity to interact with such learned august audience. सबसे अच्छी बात ये उनका level of questions is informing us कि उनका खुद का understanding कितना अच्छा है. So thank you all the participants for joining me and listening to me patiently.